Good morning students. Welcome in social science virtual class. Today we will continue the chapter 9 of history, that is making of national movement from 1870 to 1947. Students, in previous virtual class we discussed people were not happy with the British rules because they put higher taxes on farmers, put restrictions on tribal peoples, caste decline, industries decline. So they started making associations to fight against the Britishers. Puran Swaraj Association was formed. Indian National Congress was formed at 1885. Retired British officer AOU also played an important role in the formation of Indian National Congress. Student, Indian National Congress was moderate in its method and objective in its initial years. Moderates का क्या मतलब कि वो वायलेंट नहीं थे शुरू में 20 years they believed कि Britishers did not know our problems. If we inform them, then they would change the administration, they would work for our welfare. So they started requesting to the Britishers to do this reform. But what was happening till 20 years from 1885 to 1905? They were saying yes, we will do the reform, we would do the reform, but did nothing. So what was happened? One group become annoyed with the Britishers कि बार बार हम कह रहे हैं कि टैक्सेस ज़्यादा हैं, आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, इसे चेंज कीजिए, पर कर कुछ नहीं रहे हैं. तो दिस सेड्स दैट कि वी शुड नॉट बिलीव इन ब्रिटिशर्स, वी कैन रूल आवर कंट्री, वी शुड शो देम कि वी आर वेरी पावरफुल, वी कैन रूल आवर कंट्री. हम अपनी कंट्री में खुद रूल कर सकते हैं, आपकी हमें ज़रूरत नहीं. So they decided to give the lesson to the Britishers. So one group become annoyed with the Britishers, so they use radical method, radical violent method कि अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं. अगर हमें आप इस अत्याचार को, प्रॉब्लम्स को जो आप हमें दे रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए वायलेंट भी होना पड़े तो हम वायलेंट भी हो जाएंगे. आपको मानना भी पड़े तो मारेंगे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ये हमारी कंट्री है और हमें इससे खुद रूल करना है. इस तरह से 1905 में कांग्रेस दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, मॉडरेट्स और रेडिकल्स में. मॉडरेट स्टूडेंट्स बिलीव करते थे रिक्वेस्ट में कि वो अच्छे हैं, रिफॉर्म कर देंगे, पर रेडिकल्स क्या कहते हैं, ये प्यार से मानने वाले नहीं हैं, इन्हें लेसन सिखाना पड़ेगा कि हम पावरफुल हैं, अपनी कंट्री को खुद रूल कर सकते हैं, हम वीक नहीं हैं, जो आप हमें कहे जा रहे हैं और कर आप कोई भी रिफॉर्म हमारी कंट्री में कर नहीं रहे. सो दे बिकम वायलेंट. स्टूडेंट, इन 1915 दे डिसाइडेड कि ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल हैं, इनसे फाइट करने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा. सो इन 1915 दे ज्वाइंड देयर हैंड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. इन 1916 दे collectively use different methods to fight against the Britishers. Students, what was happening in 1919? First World War was going on. Britishers were busy in that war. So what was it? Also give boost to our industries. At that time, our imports declined from the Britain. So it boosted up the Indian industries during that time, and also we become powerful during this period. और इस समय महात्मा गांधी भी आए इंडिया में. 19 he born in India but went to study in abroad. So he came back in our country in 1915. So at that time he was a popular international leader because in South Africa he fought on the behalf of Indians. So when he came to India, first 1 year he traveled the whole country to know the problems of the people and fight on the behalf of
textile workers and become successful in Ahmedabad. In 1909, Britishers passed the Rowlatt Act. According to this act, if they suspected कि Indian are doing something against the Britishers, कि उनके against कर रहे हैं कुछ भी, तो they can arrest and send to the jail that person. अगर उन्हें ब्रिटिशर्स को किसी पे भी डाउट हुआ कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं या उनके अगेंस्ट कुछ करेंगे, उसे अरेस्ट करके वो जेल में भेज सकते हैं. गांधी जी एंड अदर लीडर्स एनोइड, ये क्या है कि आप पहले केस चलाइए, प्रूव कीजिए कि हमने कोई गलती की है, तो आप तब हमें जेल में भेज सकते हैं, ऐसे नहीं भेज सकते. तो दे डिसाइडेड कि दे प्रोटेस्ट द ब्रिटिश बट पीसफुल. 13 अप्रैल 1990 को जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए और पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वायलेंट मेथड के लिए नहीं, पीसफुल के लिए. बट व्हाट वाज हैपन, जनरल डायर स्टार्टेड फायरिंग ऑन पीपल और थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड इन दिस. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, किल्ड इन दिस. तो रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने कहा कि ऐसी अत्याचारी सरकार अगर हमें टाइटल देती है तो हमें उसको लेने की जरूरत नहीं है. तो उन्हें नाइटहुड का जो टाइटल दिया गया था वो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया. और 1920 में ब्रिटिशर्स ने कुछ तुर्किश एम्पायर, जो मुस्लिम एम्पायर थे, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी. तो मुस्लिम नाराज हो गए कि वो ये चाहते कि जो तुर्किश हेड है उस पर सभी मुस्लिम के जो सेक्रेड प्लेस का कंट्रोल होना चाहिए. तो उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, मुस्लिम ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दी. शौकत अली एंड मोहम्मद अली वर द मेन लीडर्स ऑफ दिस खिलाफत मूवमेंट. They asked to the Gandhi ji to support this movement. Gandhi ji supported them. Non-cooperation movement was started, and students left the school and colleges. Lawyers started the courts which were run by the Britishers. और उन्होंने कहा कि हम अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, हम इनका बायकॉट करेंगे. ड्यूरिंग दिस पीरियड इंपोर्ट भी डिक्लाइन हो गए. Student in this movement, people participated non-violently against the British, but some become violent to fight against the Britishers. In Kheda, Gujarat, farmer organized protest against the Britishers non-violently. In Andhra Pradesh, tribals sent their cattle into the forest without paying taxes. कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, उन्हें अपनी नाराजगी दिखाने के लिए हम आपको टैक्स नहीं देंगे, आपके स्कूल में नहीं जाएंगे, कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, जो भी इंस्टीट्यूशंस आप रन कर रहे हैं उसमें हम काम नहीं करेंगे. और बायकॉट कर दिया ब्रिटिशर्स की कोर्स का कि हम स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स कहीं पर भी उनके साथ काम नहीं करेंगे, अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे. In Sindh, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the Khilafat code. In Bengal too, Khilafat non-cooperation alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. हिंदू, मुस्लिम सभी ने non-cooperation movement में बढ़ चढ़कर भाग लिया. Student at that time people considered Gandhi ji as the Messiah, कि वो उनकी मिजरीज को कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, गांधी राज एस्टैब्लिश हो जाएगा, ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा. स्टूडेंट, पर गांधी जी ने ये कहा कि हम प्रोटेस्ट तो करेंगे पर हम वायलेंट नहीं होंगे. स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि चोरा चोरी में फार्मर्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, पुलिस ने उस पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, फार्मर्स भी कमेंट हुए. This set the police station into fire. और इस फायर में, आग में 22 पुलिसमैन जो है उनकी डेथ हो गई. गांधी जी नाराज हो गए कि मैंने कहा था कि हम वायलेंट नहीं होंगे, तो आपने पुलिस स्टेशन में आग क्यों लगा. तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कर दिया. गांधी जी वाज अरेस्टेड. और ड्यूरिंग दिस पीरियड लॉर्ड्स ऑफ कांग्रेस पुट प्रेशर ऑन गांधी जी कि वी वुड start constructive work in the rural areas. Chittaranjan Das and Motilal Nehru argued that we should form a party
and fight the election. We should enter into the government and influence the government policies. कि अब हमें बाहर से ही प्रोटेस्ट नहीं करना, इलेक्शन लड़ना चाहिए, गवर्नमेंट में एंटर हो जाना चाहिए, ताकि जो ये पॉलिसीज बना रहे हैं हमारे अगेंस्ट, हम उसमें ये कहीं उनका विरोध कर पाए और अपने वेलफेयर के लिए उनसे पॉलिसीज बनवा। और ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टूडेंट इन 1920s राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ was formed and Communist Party was also formed this period to protest the revolution. In 1927 ब्रिटिशर्स को पता था कि इंडियंस नाराज हैं, so they decided to send a Simon Commission to India. किस लिए? To decide the India's political structure. किस तरह का political structure चाहते हैं, कि किस तरह के इंडिया में रूल हो भेजा, और इसमें किसी भी इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया गया। So all political parties become involved कि आप हमारे बारे में डिसाइड कर रहे हैं, साइमन कमीशन को भेज रहे हैं कि इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर शासन कैसा होना चाहिए, और उसमें किसी भी इंडियन को इंक्लूड नहीं कर रहे। सो ऑल डिसाइडेड टू डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट दिस साइमन कमीशन। जब साइमन आया तो उन्होंने कहा साइमन कमीशन गो बैक, सभी जगह डेमोन्स्ट्रेशन किए गए, नाराज थे, और पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। आप रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी नाराज हो गए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स ने, जब हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि आप हमारे लिए डिसाइड कर रहे हैं, हमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आप हम पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, और हमारे एक लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई, तो उन्होंने कहा कि इनको अब हमें बताना पड़ेगा कि हम वीक नहीं हैं। सो रेवोल्यूशनरिस्ट नेशनलिस्ट भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव अदर वांटेड टू फाइट अगेंस्ट दी colonial rule and form a party, Hindustan Socialist Republican Association in 1928 at Firozabad Kotla in Delhi. On 17 December 1928, Bhagat Singh, Azad, Rajguru assassinated the surrenders a police officer who was involved in lathi charge that caused death of Lala लाजपत राय। भगत सिंह, आजाद और राजगुरु ने किसको मार दिया? सोल्जर्स को मार दिया जिन्होंने लाला लाजपत पर लाठीचार्ज किया था। On 8 April 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly. The aim, as there was explained then, was not to kill but to make the deaf and hear and to remind the foreign government of its careless exploitation. इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका, इसलिए नहीं कि किसी को मारना चाहते थे, उन्हें ये दिखाने के लिए कि हम बहुत पावरफुल हैं, आप हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो उन्हें उसके लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और एग्जीक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931। सोल्जर्स को मारने और बम गिराने के अपराध में, उनको गलती में, तीनों ने ऐसा क्यों किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उन्हें हैंग कर दिया गया। भगत सिंह की एज उसमें सिर्फ 23 ईयर्स, उन्होंने इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया, सोल्जर्स को मारा, लेजिस्लेटिव असेंबली में कि अब मरने से नहीं डरते, चाहे हमें मार दो, अब हमें अपने देश को आपसे आज़ाद कराना है, आपके अंदर नहीं रहना। स्टूडेंट, द डिबेट क्लोज विद द कांग्रेस रिजोल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। अब हमें आपके अंदर नहीं रहना, पूर्ण स्वराज चाहिए। ये दिसंबर 1929 में मीटिंग की गई और ये डिसाइड किया गया 26 जनवरी 1930 से हम हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, क्योंकि अब हमने डिसाइड कर लिया। पहले हम आपसे चाह रहे थे कि रिफॉर्म कीजिए, सुधार कीजिए हमारे देश में, पर अब हमें चाहिए कि हम अपनी कंट्री को खुद ही रूल करेंगे, और डिसाइडेड कि फ्रॉम 26 1930 की एवरी ईयर वी विल सेलिब्रेट दी इंडिपेंडेंस डे। हम अपनी आज़ादी लेकर ही रहेंगे, हम आपके अंदर नहीं रहेंगे। स्टूडेंट, पूर्ण स्वराज would never come out on its
हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। He decided to march to break this sword. अब हम ब्रिटिशर्स के कानून को नहीं मानेंगे। According to this, the state had monopoly on the manufacturing and sale of sword. क्या था ब्रिटिशर्स? नमक ब्रिटिशर्स ही बनाते थे और उनका सेल करते थे और उस पर टैक्स भी लगाते थे। तो हमें कहा कि ब्रिटिशर गांधी जी ने और उन्होंने कहा कि सोल्ट जो है एक असेंशियल चीज़ है, हमारे खाने में हमेशा यूज होता है, तो इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जरूरी चीज़ों को, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं जैसे खाना है, रोटी, वीट, राइस, नमक पर टैक्स होना नहीं चाहिए। और चीज़ों पर टैक्स लगाने पर सोल्ट पर टैक्स होना नहीं चाहिए। गांधी जी एंड हिज फ्लोर मार्च ओवर 240 मील्स फ्रॉम साबरमती टू coastal area Dandi, where they broke the government law by gathering the natural salt found on the seashore. गांधी जी और उनके फ्लोर साबरमती आश्रम से चले 240 मील्स पैदल गए। और डांडी क्या है? विलेज है नियर टू सी कोस्ट। वहां पर जाके जो सोल्ट ब्रिटिशर्स बनाते थे, खुद वहां पानी को बॉयल करके सोल्ट भी बनाया और जो समुद्र के किनारे नमक पड़ा हुआ था उसे इकट्ठा किया। उस समय सोल्ट बनाने का राइट सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास था, इंडियंस के पास नहीं था। गांधी जी ने वहां जाकर नमक बनाया और इकट्ठा किया। ये किया कि अब हम आपके कानून को मानने वाले नहीं हैं, अब हमारी कंट्री में हमारा रूल चलेगा। सोल्ट लॉ को ब्रेक करने का यही पर्पस था, उन्हें बताना कि अब हम आपके कानून को मानने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट्स, इस मूवमेंट में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया। गांधी जी शुरू में इंटरेस्टेड नहीं थे कि वुमेन्स पार्टिसिपेट करें, पर सरोजनी गांधी ने कहा कि वुमेन्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो कम नहीं है। देन गांधी जी एग्रीड कि ऑल विल पार्टिसिपेट इन दी नेशनल मूवमेंट। अंबाबाई ऑफ कर्नाटका had married at the age of 12, widowed at 16। 12 years में उनकी मैरिज हुई और 16 में वो विडो हो गई। She picked foreign clothes and required shop. She was arrested. Several served a sentence and was arrested. उन्हें अरेस्ट कर दिया गया, पर जेल में भी बैठकर उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे, लोग को मोड़ के कई जगह जब फ्री हुए जेल से तो स्पीचेस दी कि अब हम ब्रिटिश के अंडर रहने वाले नहीं। स्टूडेंट, फार्मर्स, ट्राइबल्स, वुमेन, सबने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो इसका इम्पैक्ट भी हुआ। कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोथ फ्रूट्स व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935 एक्ट वाज पास। जब सबने ब्रिटिशर्स के कानून को मानने से इनकार कर दिया था, तो गवर्नमेंट ने इंडियंस को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास। इसमें इंडियंस को भी इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी गई। तो 11 स्टेट्स में से 7 में इंडिया कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई और इट वाज दिस इलेक्शंस वाज हेल्ड इन 1937। और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो पीपल हु वर क्रिटिकल ऑफ हिटलर, जो हिटलर को पसंद नहीं करते थे, डिसाइडेड टू सपोर्ट दी ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर्स का इस सेकेंड वर्ल्ड वार में सपोर्ट करेंगे, पर ब्रिटिशर्स हमें ये कमिटमेंट करें कि आफ्टर दिस वॉर दे गिव फ्रीडम टू अस। उसके बाद वो हमारे देश में रूल नहीं करेंगे, हमें फ्रीडम देंगे। पर ब्रिटिशर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, अब हमें ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं रहना। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर इन द मिडल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The British must quit India immediately. अब ब्रिटिशर्स को इमीडिएटली हमारे देश को छोड़कर जाना होगा। He told them do or die to fight against the Britishers. Do or die का क्या मतलब? या तो हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे, नहीं तो आज़ादी के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं। हम मरने से नहीं डरते। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अब हमारी फ्रीडम। We are ready to get the freedom, otherwise we are ready to sacrifice for our life, for our freedom. Do or die. या तो देश को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के लिए हम लड़ने के लिए तैयार
तैयार हैं, हम इससे डरने वाले नहीं। पर गांधी जी ने कहा कि मस्ट नॉन वायलेंट, हम लड़ेंगे पर हम वायलेंट नहीं होंगे। अगर हम सच्चे हैं तो हमें वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा देश है और इसमें हमारा रूल ही होना चाहिए। कोई किसी का राइट नहीं है कि कोई दूसरा आके हमारी कंट्री में रूल करे, तो इन्हें हमारे देश को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942। वी डिसाइड जो मर्जी हो जाए अब अपने देश को आजाद करवा कर ही छोड़ेंगे। रेडी फॉर डू और डाई, या तो देश आजाद होगा या उसके लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं, पर हमें ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर नहीं रहना। तो ब्रिटिश बिकम एनॉयड with this, so 19,000 persons were arrested, 1,000 were killed in this Quit India movement. But in meanwhile, in 1940, Muslim leagues were demanding separate areas for Muslim in western part of our country and eastern part of country. In 1940, they were not demanding separate nation for Muslims. Student, ये जो ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स ने अपने लिए अलग डिमांड करनी शुरू की थी एरिया से, ये स्टार्ट हुई थी 1930 में। जब 1935 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस 7 एरिया में क्लियरली जीत गई गवर्नमेंट बनाने, पर कुछ एक एरिया में मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि कांग्रेस उसका साथ दे और वो सरकार बनाए, पर कांग्रेस ने मना कर दिया। तो दे बिकम एनॉयड, उन्हें ये था कि अब इनके साथ नहीं रहना, हमें मुस्लिम्स के लिए अलग एरिया चाहिए, अलग स्टेट्स चाहिए। स्टूडेंट, इन 1945 ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशन बिटवीन कांग्रेस लीग एंड देमसेल्फ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। उन्हें लगा कि अब हम यहाँ रूल नहीं कर सकते, तो नेगोशिएशन करते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग, कांग्रेस जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें बुलाया गया, पर मुस्लिम लीग डिमांड करती रही सेपरेट नेशन इन 1945 को मुस्लिम, पर कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक साथ रहेंगे, मुस्लिम अलग कंट्री में नहीं रहेंगे। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया व्हेन मेनी वर अरेस्टेड, जेल में थे, तो दे कलेक्टेड द सपोर्ट फॉर द मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स की सपोर्ट गैदर की, इसलिए अलग नेशंस के लिए। स्टूडेंट्स, व्हाट वाज हैपन, अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को लगा रूल तो कर नहीं सकते, और जो ये मीटिंग भी की थी वो भी फेल हो गई थी। इन 1946 ब्रिटिश सेंट अ कैबिनेट मिशन, 3 मेंबर कैबिनेट मिशन टू दिल्ली टू एग्जामिन द डिमांड एंड टू सजेस्ट द सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ फ्री इंडिया। 19 कैबिनेट मिशन को भेजा गया, जिसमें ये डिस्कस करने के लिए कि क्या डिमांड है, उनकी डिमांड्स क्या है, और जब हम देश को छोड़ देंगे तो यहाँ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा। और मुस्लिम लीग इस बात के लिए अड़ी रही कि उन्हें अलग नेशन चाहिए मुस्लिम्स के लिए, और कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 डिसाइड कर दिया डायरेक्ट एक्शन देकर कि अब हमें तो अलग, हम हर हालत में मुस्लिम्स के लिए अलग नेशन चाहिए। और इस दिन क्या हुआ, ऑन दिस डे riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in death of thousands of people. By March 1947, violence spread to different parts of northern India. Many 100,000 people were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition. बहुत टॉर्चर्स किया गया वुमेन को, हजारों लोग मारे गए, तो उन्हें क्या जिद थी, हमें अलग नेशन चाहिए। तो लास्ट में ये मानना ही पड़ा, गांधी जी ने कहा कि इतने लोगों का मरना हमें स्वीकार नहीं है, तो ठीक है, मुस्लिम अलग देश में नहीं और हिंदू इधर नहीं इंडिया में। सो व्हाट वाज हैपन, वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स ऑन 15 अगस्त 1947। बट एट दैट टाइम वी वर नॉट फुली हैप्पी। व्हाई? बिकॉज हमारी जो यूनिटी थी, एक भारत था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, इंडिया एंड
पाकिस्तान। खुशी भी थी और खुशी के साथ देश का 2 पार्ट्स में बंटने का स्टूडेंट्स हम ही नहीं फाइट कर रहे थे इंडिपेंडेंस के, और भी कंट्रीज जो थी कॉलोनियल रूल के अंडर थी, दे वर आल्सो फाइटिंग लाइक घाना, जिसे गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, गोल्ड फ्रीडम फ्रॉम दी सब सहारन अफ्रीकन कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से सब और भी कंट्रीज जो कॉलोनियल रूल के अंदर थी, जिसे दूसरी कंट्रीज एक्सप्लॉइट कर रही थी, वो खुश नहीं थे, दे वर फाइटिंग एंड गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम, कुछ नहीं अचीव कर ली थी और कुछ इस स्ट्रगल में लगे हुए थे। तो पूरे लेसन में हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई गई टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। शुरू में तो रिफॉर्म के लिए बनाई गई, पर जब उन्होंने कोई रिफॉर्म नहीं किए तो डिसाइड किया गया कि अब हम इसके अंदर नहीं है। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट लेड किया, सबने मिलजुल कर स्ट्रगल की एंड गॉट फ्रीडम फ्रॉम दी ब्रिटिशर्स। इन दिस वे वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम दी ब्रिटिशर्स। स्टूडेंट लिसन द वीडियो, read the lesson and do the work and send to us on your given day। और जो हम लेसन कर चुके हैं 6 के 3 उसे आप रिवाइज करें, और एक हिस्ट्री का जो लेसन 8 है उसे भी रिवाइज करें। 9th वी हैव कंप्लीटेड, इसे आपको लर्न करना है, और इसके बाद में एक लेसन ऑन करना है, दैट इज लेसन 10, और उस लेसन में हम डिस्कस करेंगे